Hi everyone, my name is Shruti and in this video I am going to share 20 truths about life जो मैंने आज तक सीखे हैं और जितनी मैंने बुक्स पढ़ी हैं सेल्फ हेल्प बुक्स कुछ पढ़ ली मैंने आजकल। हाँ, तो अब मुझे लग रहा है कि 20 साल की तो मैं हो ही गई हूँ, तो आई थिंक आई शुड शेयर दीज थिंग्स विद यू, क्योंकि समवेयर बिटवीन ऑल दीज chaos I have realized that I have learned a few things. So today I want to share these things with you that growing up has taught me. So let's start. Okay, so the first thing is not everything will go as planned, and that's okay. Kyunki when I was in class 10th, I have everything sorted out that after 12th I have to do this, I have to clear this exam, I have to do, and nothing went according to the plan. So sometimes life redirects you, and those things are often the best part of the journey. Now the second thing is people come and go, and learning to let go gracefully is a sign of maturity, not weakness. Our connections, there are some connections or some people like who are karmic in your life, and you just have, they come to teach you some lesson. Okay, so the third thing is healing isn't linear. You'll think you're fine one day and break down the next, and both are valid. It often happens to me, like to everyone it happens, that one day you are like, okay, I have the energy, I'll do this, and the next day you're just lying on the bed and doing nothing, which is okay. Now the fourth thing is the right people will never make you doubt your worth. Trust me. पहले मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, बट अब सिर्फ 2 दोस्त हैं, एंड दे आर द ओनली राइट पीपल I have in my life. They are always by my side, and nothing can make them doubt my worth. Like, energy doesn't lie, right? And you will always get the energy of the person, सामने वाले की, is this the right person? Is so cut off the people जो जो डाउट करते हैं तुम्हारी वर्थ पर. द फिफ्थ इज, जो 5वीं चीज़ है वो, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस बुक का क्योंकि मैंने इतनी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ ली हैं कि अब मेरे को याद नहीं है कि कौन सी बुक में क्या लिखा हुआ है, बट या, सॉलिट्यूड इजेंट लोनलीनेस. Being alone can be one of the most peaceful and grounding experience. मैं पर्सनली अकेले रहना बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता, एंड गोज़ टू यू एज वेल. तुम बाहर वैलिडेशन ढूंढते हो बट कभी खुद से पूछा है? नेवर. ओके, सिक्स्थ इज सक्सेस फील्स एम्प्टी इफ़ यू लूज योर सेल्फ along the way. Stay true to your values even when the world tells you to rush. और मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि सक्सेस तब तक तुम्हें खाली लगेगी अगर एंड में आके तुम अपनी फेवरेट हॉबी, यू आर लूजिंग योर सेल्फ, जैसे तुम पहले थे वैसे तुम नहीं हो, तो नथिंग इज गोना मेक वर्क. एंड द सेवेंथ थिंग इज, लेट मी चेक, it's okay to start over at my age, at any point of your life. The next thing is, the smallest act of kindness matters the most. Like a message, a smile, or a thank you that can change someone's entire day. And I have always been a kind of girl which is always very kind to people. और मैं कभी पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, मैं खुद की तारीफ नहीं करती तो अच्छा है, बट ठीक है. नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट इज कंपैरिजन स्टील्स जॉय. अगर लाइक योर टाइमलाइन इज योर alone, don't let social media make you forget that. Okay, the next thing is your mental peace is priceless. Protect it, even if it means
वॉकिंग अवे फ्रॉम पीपल यू लव। लाइक कुछ महीने पहले आई वॉज नॉट डूइंग गुड मेंटली, तो मैंने अपने सारे फॉलोअर्स सारे सबको हटा दिया था। लाइक सारे फॉलोअर्स 0 कर दिए थे, बिकॉज मुझे अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना था और रह गए थे बस मेरे 2 दोस्त। बस अपनी लाइफ में बस उन लोगों को एंटर करने दो जो सच में तुम्हारा भला चाहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी और से कांटेक्ट ही मत रखो या फिर किसी और से बात ही मत करो, नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना बंद कर दो, एज सिंपल एज दैट। और अगर तुम्हें बताना ही है तो कुछ ऐसे लोग जिन पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट मतलब एकदम जिगरी वाला ट्रस्ट, उनको ही बताओ बस अपनी चीज़ें और किसी को मत बताओ, एंड प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस। और मेंटल पीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज़ फेलियर इज़न्ट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। मुझे भी कुछ टाइम पहले यही लगता था कि जब मैंने अपना नीट दिया और मेरा नहीं हुआ, मतलब बहुत ही गंदा स्कोर था, उसके बाद आई थॉट ख़त्म हो गया सब, लाइफ में कुछ है ही नहीं। लेकिन हेयर आई एम स्टैंडिंग। अब मैं कुछ अच्छा कोर्स करने जा रही हूँ जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगी। आई फेल्ड, बट मेरी लाइफ वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। 1-2 महीने आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज फेसिंग लॉट ऑफ मेंटल इशूज़ like anxiety, depression and a lot of things. I will make a separate video about it अगर तुम लोग को चाहिए होगी तो। Yeah, failure is just a part of success. I have started feeling कि every no in your life choices or your life decisions is just redirecting you towards something better. अगर कोई चीज़ में तुम्हें सफलता नहीं मिली तो मे बी कुछ अच्छा अनफोल्ड हो रहा होगा आगे, इससे भी ज़्यादा अच्छा, जिसमें तुम अच्छा कर जाओ। ऑलवेज़ गो विद दिस एनर्जी। अगर तुम किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में फेलियर या फिर ऐसा कुछ फील कर रहे हो तो द नेक्स्ट थिंग इज़ यू अट्रैक्ट वॉट यू बिलीव यू डिज़र्व। So learn to speak kindly to yourself. Treat yourself like you are the queen, you are the king, you are everything. Because अगर तुम खुद को, हमारे खुद के थॉट्स हमारा जो वर्ल्ड है वो शेप करते हैं। हमारी लाइफ, हमारे आज के क्या डिसीजंस हैं, हमारे क्या थॉट्स हैं खुद को लेके, उस पर डिपेंड करता है हमारी फ्यूचर लाइफ। अभी हम अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करते हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हम अपने आप की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ रियल लव गिव्स यू पीस। अगर तुम्हें वो चीज़ ड्रेन कर रही है, दैट्स नॉट द थिंग फॉर यू। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ you are allowed to outgrow people, dreams and version of yourself. हम हमेशा evolve हो रहे होते हैं। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है स्कूल लाइफ का और अब तुम कॉलेज में आ गए हो, उससे कोई बात नहीं हो रही है, उसके लिए तुम बस वो स्कूल वाले बच्चे ही हो। और अगर वो तुम्हें कॉलेज में आके मिलता है, तुम्हें कहता है कि भाई तू तो बहुत चेंज हो गया है, तू ऐसा हो गया है, बट हाँ, बिकॉज आई हैव इवॉल्व्ड। और ह्यूमन रेस का यही लॉजिक है, ह्यूमन रेस का यही स्टडी है दैट यू आर ऑलवेज इवॉल्विंग। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारा अपीयरेंस, तुम्हारा सब कुछ इवॉल्व हो रहा होता है टाइम के साथ साथ। आज मैं एक पर्सन हूँ, कल मैं कुछ और पर्सन हो सकती हूँ। आज मैं ये सोच रही हूँ, आज मेरा इस टॉपिक पे ये POV है, अगले दिन कुछ और हो सकता है, क्योंकि I am learning, I am in the phase of growing, I am evolving. Point number 15 is forgiveness is more about freeing yourself than others. Holding grudges only keeps you stuck in old energy. अगर तुम किसी को forgive कर रहे हो तो make sure कि अब उसके बाद अंदर कोई भी grudges ना हो उस person के लिए या उस situation के लिए। Next point, which is the point number 16, is gratitude changes everything. The moment you focus on what's going good, life gives you more of it. Trust me. इसीलिए start practicing gratitude. Now the 17th thing is, कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर तुम बस सर्वाइव कर रहे हो और वो इनफ है, बिकॉज यू डोंट हैव टू
एवरी डे इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव डे. आज हमने सोचा है कि ठीक है, आई हिट द जिम, आई डू दिस, आई डू दैट एंड आई मेक द डे प्रोडक्टिव. ठीक है, आज कर लिया, 2-3 दिन हो गए, बट 2-3 दिन के बाद चौथा दिन you just don't feel like waking up early in the morning. You have to just survive. क्योंकि वही ना, यू आर इवॉल्विंग, यू आर लर्निंग. अभी तुम अपनी लर्निंग स्टेज में ही हो, और एक बार उस चीज़ की आदत पड़ गई तो वो चीज़ छूटेगी. तो हाँ, ऑफ कोर्स गिल्ट होगा, बुरा लगेगा, बट देन आप हमेशा बेटर बनते जा रहे हो. तो यू ऑल्सो नीड ब्रेक. You don't have to be productive all the time to have values. Now, the 18th point is you don't need everyone to understand your journey. तुम्हारी जर्नी है, हर किसी को पता नहीं होना चाहिए. You don't need everyone to understand your journey, और you don't always want validations from others कि वो लोग क्या सोचते हैं. और बट ये तो तुम्हें ज़्यादा पता होगा ना उनसे. So just stop doing that. 19th is the universe always listens. यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है तुम्हारी बातें, एवरीथिंग. यूनिवर्स से कम्युनिकेट करते हो जिस भी वे में, बस पेशेंस लगता है थोड़ा सा एंड यू आर गुड टू गो. द लास्ट थिंग इज़ यू आर स्टिल बिकमिंग. देयर इज़ नो फाइनल वर्जन ऑफ यू एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ यू. So, these are 20 truths that life has taught me so far, and I'm still learning, still growing, and still figuring it all out, just like you. And if any of these resonates with you, let me know in the comments. And remember, you are exactly where you are meant to be. Thank you for listening, and I'll see you in the next video. Bye bye.